Hello, my students. Welcome back to Channel Scholars Mathematics Rumina. And today we are going to understand about application derivative exercise 6.3 question number 8 to question number 10. इससे पहले की सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. You can go over there and watch the more videos and understand the concept very deeply with from there itself. Now let's start 6.3 question number 8. Question like it's just something which I have already done in the class. Question number 8 आपका ये रहा. Let's get started and let's understand this question. It says me at what point in the interval 0 से 2 pi does the function sin 2x attains its maximum value. That means जो मेरे यहाँ पे पास function है वो क्या है मेरे पास sin 2x मेरा जो है वो main function था. Now I know that for obtaining the maxima and minima I need to firstly obtain the critical point. So let's do the derivative for that. So it is going to be your 2 cos 2x. To obtain the critical point, let's keep your f dash x equals to 0. So it would be 2 cos 2x. Now from here we should know one concept, that is cos x is equals to cos y whenever your x is, for the general solution of x is 2n pi plus minus y. So now we just need to see it's basically 0 is equals to cos 2x. Now we know when our cos is 0 at pi by 2, so cos 2x is equals to basically cos pi by 2. This implies is that 2x is equals to pi by 2. Basically this implies that x is equals to pi by 4, but this is only for the first quadrant that we have. Basically मैं सिर्फ यहाँ पर हूँ, but I need to do from 0 से 2 पर. That means मुझे अपने चारों quadrants को लेना पड़ेगा यहाँ पर and to see कि मेरे पास क्या क्या values आएंगी. So देखो बेटा, ये तो मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू आई, but I can just say that by using the general solution 2x is equals to 2n pi plus minus pi by 2. So, and from here I can obtain all the values that I have. Obviously ये मेरे पास वैल्यू थी, but ये सिर्फ वैल्यू मेरी पॉसिबल थी only for the first quadrant, but I need to do for the 4 quadrants. So let's do for the 4 all quadrants. इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, या मैंने आपको हिंट दे दिया कि ऐसे भी किया जा सकता है, बट ये जो है गलत कॉन्सेप्ट है. एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये यूज़ होगा यहाँ पे बिकॉज 0 से 2 पाई जो है मेरे पास मेरा रेंज गिवन है. So now मुझे पता है मैं अलग अलग वैल्यू निकालूंगी when my n is different. Firstly when my n is 0, let's obtain for the x. X is equals to n pi plus minus pi by 4. Okay. When my n is 0, my x is plus minus pi by 4, but minus possible नहीं है because 0 से consider होगा, so it would be pi by 4 only. When my n is 1, I know it's going to be x equals to pi plus minus pi by 4. So I'm going to have two values from here. One would be in plus and one would be in minus. So यहाँ पे 4 pi plus pi by 4 कितना होगा 5 pi by 4, और x आएगा मेरे पास जब माइनस होगा तो इट वुड बी और 3 pi by 4. करेक्ट है, मेरे पास यहाँ से भी मेरे पास अपनी वैल्यूज़ आ चुकी हैं. Similarly I will just keep my n as 2. So x would be 2 pi plus minus pi by 4. So x would be 8 plus 1, that is 9 pi by 4, और x is equals to your यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 7 pi by 4. अब बस देखना 2 pi से कहीं पे भी वैल्यू जो है ऊपर ना हो जाए. अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करती हूँ, सो इट इज़ 180/4, that is 45 इंटू 9 कितना आ जाएगा मेरे पास, just 1 minute. Okay, yeah, it will not be more than 360. Similarly let's take n equals to 3, so x equals to 3 pi plus minus pi by 4. So x would be equals to 12 plus 1 would be 13 pi by 4, और x equals to 11 pi by 4. अब 11 pi by 4 क्या है बेटा, बेसिकली 11 pi by 4 जो है that is somehow greater than your 2 pi. So this will not be possible, even this will not be possible. That means मेरे पास आंसर जो थे वो था pi by 4, 5 pi by 4, 3 pi by 4, 9 pi by 4 and 7 pi by 4. तो इन सब वैल्यूज़ पे ही है जो मैं अपने चेक करने वाली हूँ. एक बार मैं दोबारा देख लेती हूँ फॉर द 9 pi by 4 कैलकुलेशन. Just 1 minute. 9 into 180 divided by 4. Okay, it's 403. ये भी 405. It is also somehow greater than 360. ये भी पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स वी हैव दिस मच वैल्यूज नाउ. तो 0 से शुरू करेंगे, 2 पाई पे इसको ओवर कर देंगे. ठीक है, just take a screenshot. I'm going to delete all these values. So x0, x equals to
पाई बाय 4, x equals to 3 pi by 4, x equals to 5 pi by 4, x equals to 7 pi by 4. That's it. And we need to obtain the function, maximum function for sin 2x. बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे और देखेंगे मेरे पास क्या आंसर आ रहा है और क्या नहीं. एन एक्स इक्वल टू 2 pi, दैट इज द एंड. तब जीरो है तो साइन जीरो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन जीरो इज बेसिकली इक्वल्स टू जीरो, सो जीरो. साइन पाई बाय 4, सो साइन 2 इंटू पाई बाय 4, साइन 2 इंटू पाई बाय 4, ये और ये कैंसिल, पाई बाय 2. साइन पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. सिमिलरली वी जस्ट नीड टू राइट द आंसर्स. सिमिलरली यहाँ पे कहेगा साइन 2 इंटू 3 पाई बाय 4, सो 2 और 4 कैंसिल होगा तो कहेगा 3 पाई बाय 2. ये आ जाएगा करेक्ट है यहाँ तक. अब 3 पाई बाय 2 कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, आई नो आई कैन जस्ट रीराइट दिस एज साइन पाई प्लस पाई बाय 2, so pi plus, that means third quadrant, so minus sin pi by 2 which is basically equals to minus 1 आ गया. Similarly your sin 2 and 4 दोबारा कटेगा, so it would be 5 pi by 2, so which would be sin 2 pi plus pi by 2, that means first quadrant, so it's going to be your simply sin pi by 2 which is going to be equals to 1. Similarly 7 sin 7 pi by 2 which is basically going to be your sin 3 pi plus pi by 2, that means again third quadrant, so minus sin pi by 2 which is going to be your minus 1. And similarly we have sin 2 pi, that is sin 4 pi which is 0 basically. So maximum कहाँ पर आएगा, मैक्सिमम आ रहा है 1 पर, और 1 कितने आ रहा है, पाई बाय 4 पे भी आ रहा है, 5 पाई बाय 4 पे भी आ रहा है. सो ये दोनों क्या ही है, ये दोनों ही मैक्सिमम है. सो आई विल जस्ट राइट हेंस maximum value of fx is equals to 1 at x equals to pi by 4 and 5 pi by 4, and that is your final answer. Simple question था, बस समझने वाली बात थी. Okay, take a screenshot. I'm going to move ahead in just a minute, in just some seconds basically. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन sin x प्लस cos x. कोई इंटरवल गिवन नहीं है, सो वी आर जस्ट गोइंग टू रिमेन अप टू योर लिमिट ऑफ 2 पाई. सो 0 से 2 पाई, दैट मीन्स 4 क्वाड्रेंट्स कंसीडर करेंगे, दैट्स इट. जब कुछ ना गिवन हो तो हम हमेशा वहीं से वहीं ट्रैवल करना चाहते हैं. ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इफ़ यू रिमेंबर, तब मैंने बताया था इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी हैव, और ये रहा है वो वाला क्वेश्चन. ओके, कि 0 से पाई था, अब हम 0 से 2 पाई पे मूव कर रहे हैं. तो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन क्या है, इट इज़ बेसिकली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. अगेन सेम वर्किंग, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं. सो इट वुड बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कीप इट इक्वल टू 0, तो ये यहाँ चल जाएगा. दैट इज साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स. हम बहुत अच्छा साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू टैन, विच इज़ टैन एक्स इज इक्वल्स टू 1. यहाँ तक मेरे पास आ गया. अब टैन एक्स 1 कब होता है, पाई बाय 4 पे होता है. एंड मुझे पता है 1 है, पॉजिटिव है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहता है. इज पाई प्लस पाई बाय 4 पे भी होगा, दैट इज योर टैन एक्स इज इक्वल्स टू टैन पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, इट इज़ बेसिकली 5 पाई बाय 4. दैट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, और 0 से और 2 पाई, तो हम स्टार्टिंग और एंडिंग कर ही रहे थे. सो दैट मीन्स आई जस्ट नीड टू ऑब्टेन द आंसर फॉर 0 पाई बाय 4, 5 pi by 4 and your 2 pi. Just keep it in the expression and you get your final answer. 0 है तो sin 0 0, cos 0 1, so 1 आ गया. sin pi by 4 plus cos pi by 4, 1 plus root 2 plus 1 plus root 2 which is basically your root 2. अब है मेरे पास क्या, 5 pi by 4, so 5 pi by 4 क्या हो जाएगा, sin pi plus pi by 4 प्लस कॉस पाई प्लस पाई बाय 4. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों मूव कर चुके हैं, एंगल चेंज नहीं होगा, सो इट वुड बी बेसिकली माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 विच इज़ गोइंग टू बी बेसिकली और माइनस रूट 2. सिमिलरली 2 पाई है तो साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई विच इज़ बेसिकली 0 प्लस 1, दैट इज़ 1. मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो साफ साफ दिख रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरे पास, इट इज़ बेसिकली माई रूट 2 बिकॉज इट इज 1.4 समथिंग. सो मैक्सिमम वैल्यू is root 2 at x equals to pi by 4. That's it. And now question number 10, काफ़ी simple question है. Question number 10 भी it says me find the maximum value of this interval this, hence find the maximum value of the same function in this interval. मेरे पास फंक्शन क्या है यहाँ पे, 2x क्यूब माइनस 24x प्लस
107. लेट्स फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट. सो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास? इट वुड बी 6x² माइनस 24. कीप इट इक्वल टू 0. 6 को कॉमन ले लो तो क्या बचा? x² माइनस 4. दैट मीन्स x² इज इक्वल्स टू 4. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. पहले देखना मैक्सिमम एट द इंटरवल 1 and 3. सो 1 and 3 के लिए आई हैव 3 वैल्यूज. दैट इज बेसिकली योर 1, 2, 3. हम इन तीनों पे अपना एफ एक्स की वैल्यू जो है वो ईजिली निकाल सकते हैं. सो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3 फॉर योर करंट एफ एक्स विच इज़ बेसिकली 2x³ माइनस 24x प्लस 107. अब यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करो बेटा. आई नो आई कैन सिंपली फाइंड द वैल्यू बाय पुटिंग द एक्सप्रेशन ओवर हेयर. दैट इज f1 कितना होगा? 2 माइनस 24 प्लस 107 विच इज़ बेसिकली 85. सिमिलरली f2 क्या हो जाएगा? 2 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8. 8 इंटू 2 इज 16 माइनस 24 इंटू 2 दैट इज योर 48 प्लस 107 विच इज़ गोइंग टू बी टर्न आउट एज 75. सिमिलरली f3 रखते हैं. इट इज़ गोइंग टू टर्न आउट एज 89. सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 89 है. At x 89 at x equals to 3. Similarly we also need to find maximum value for the function this. So x यहाँ पे क्या है? -3 है. x यहाँ पे क्या है? -2 बिकॉज -2 मेरे पास निकल गया था. एंड x क्या है मेरे पास यहाँ पे? -1. मुझे अब इन तीनों वैल्यू पे भी क्या है? अपने एफ एक्स को जज करना है. सो f ऑफ -3 क्या हो जाएगा? 125. मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है. यू कैन जस्ट डू इट योरसेल्फ. f ऑफ -2 वुड बी योर 139 एंड f ऑफ -1 वुड बी 129. सो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 139 मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी है. दैट इज that's all for today. That's all for this video. In the next class you're going to get 3 or 4 more new questions. Till that, bye bye, take care and please stay healthy.